ساکٹار مالی سال 2017-18 کا بجٹ پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ درآمدگی گاڑیوں پر درآمدی ڈیوٹی کی موجودہ شرح برقرار رہے گی۔ فلاحی اسپتالوں کو اشیاء کے برآمد پر ڈیوٹی فری کی سہولت، عسکری اسپتالوں کو بھی دینے کا اعلان کیا۔ ٹیکسٹائل مشینری کی درآمد ڈیوٹی فری برقرار رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سورج مکھی کے بیج پر ٹیکس کم کیا جا رہا ہے۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ زرعی انجن پر ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ 5 بڑی برآمدی صنعتوں کو سیلز ٹیکس میں چھوٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ٹیکسٹائل تربیت کے لیے ملک بھر میں 1000 سلائی مرکز قائم کیے جانے کا اعلان بھی کیا۔ 5 بڑے برآمدگی سیکٹر کے لیے زیرو ریٹڈ ٹیکس کی سہولت برقرار رہے گی۔ ساکٹار نے بجٹ پیش کیا آج اور اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت۔ انہوں نے کہا کہ مالی لحاظ سے پاکستان کو غیر مستحکم قرار دیا جا چکا تھا۔ اس وقت جی ڈی پی کی شرح 5.3% ہے۔ ٹیکس محصولات میں 30% اضافہ ہوا۔ زرعی مبادلہ کے ذخائر 4 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی آئی ہے اور آئندہ سال تک لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس مستحکم تبدیلی کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ معاشی کامیابی پر وزیراعظم پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسحاق ڈار نے آج بجٹ پیش کیا ہے مالی سال 2017 اور 18 کا۔ انہوں نے کہا کہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے بھی قرض لینا پڑتا تھا۔ پہلے ہم غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے بھی قرض لیتے تھے۔ کسی بھی ادارے کے لیے ترقیاتی مقاصد کے لیے قرض لینا غلط بات نہیں ہے۔ عوام میں اپوزیشن کے جھوٹا کے نعرے بھی لگتے رہے اور انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کا ہم پر اعتماد بحال ہوا۔ پاکستان میں ترقی کی شرح زرعی پیداوار میں قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا تھا۔ روزانہ سال زرعی پیداوار میں 3.6% اضافہ ہوا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہوا جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مالی سال 2017-18 کا بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار منتخب وزیر اعظم وزیر خزانہ مسلسل 5واں بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ مختصر طور پر گزشتہ 4 سال کے احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار مالی سال 2017-18 کا بجٹ پیش کیا اور اسی حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد جہاں آپ کو جوائن کریں گے ساتھی اینکر عمران سلطان۔ بڑی طویل ترین تقریر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی اور بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ بجٹ اسپیچ میں۔ آج انہوں نے 5واں بجٹ پیش کیا۔ ملک کی معیشت کی بڑی واضح انہوں نے مثبت جو ہے ایک عکاسی کی اور ایک ویژن جو ہے اس کو آگے لے کے چلے۔ بہرحال دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو، پلس مائنس، ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن جو اہم ترین چیزیں یہاں پہ سامنے آئیں عوامی پرسیپشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں عوام کے لحاظ سے، تو سب سے پہلے بیواؤں کے قرضوں کی معافی جو ہے وہ 5 لاکھ تک روپے کے جو قرضے تھے، جو اس سے پہلے جو ان کا پہلا ٹینیئر تھا تقریباً دو دہائی پہلے، اس وقت یہ اسکیم تھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور دیگر اداروں سے جو بیواؤں کے قرضے تھے وہ کافی حد تک معاف ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس اسکیم کو کسی بھی گورنمنٹ نے فالو نہیں کیا تھا۔ آج کافی عرصے بعد ایک یہ بڑی اچھی اسکیم یہاں پہ بتائی ہے فائنانس منسٹر نے کہ بیواؤں کے قرضے اور 5 لاکھ روپے تک کے جو قرضے ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی اور باقاعدہ ان کو اس پہ کلین چٹ دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پینشنرز کی ادائیگیوں کا جو سلسلہ ہے اس کی کلیئرنس جو ہے، اس میں ایک بڑا رش ہوتا ہے مرکزی قومی بچت میں اور اس کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، تو اس کلیئرنس کا جو ٹائم ہوتا ہے جو اس سے پہلے 6-7 دن کا ہوتا تھا اس کو 1 دن کے اوپر کر دیا۔ اور ساتھ ہی یہاں پہ جو سرکاری ملازمین کی پینشنز تھیں ریٹائرڈ ملازمین کی، اس میں 10% اضافے کی بات کی ہے اور جو بیسک اس وقت تنخواہ ہے وہ منیمم ویج 14 سے 15,000 روپے کی، یہ کچھ ان کے اقدامات۔ ساتھ ہی ساتھ ایک عوامی مسئلہ چھالیہ کے اوپر تقریباً 25% ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس وقت نافذ کر دی گئی۔ معذور افراد کے لیے اسپیشل نوکریوں کا کوٹا جو ہے اس کی انہوں نے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم ذرا اس کے دیگر پہلوؤں کے اوپر آتے ہیں۔ جو بنیادی چیزیں تھیں بیواؤں پہ قرضوں کی ایک جو سہولت تھی، جو قرضوں کی معافی، اس کو 5 لاکھ روپے تک کر دیا۔ جو
रिलीफ कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी आए हैं, कॉर्पोरेट के हवाले से भी आए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको 30%, उसमें 1% की रिडक्शन कर दी गई है इस्लामी बैंकारी के फ़रोग के लिए, और मुल्क पे फाइनेंशियल जो इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम है उसके फ़रोग के लिए भी इंसेंटिवाइज किया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में विद होल्डिंग टैक्स की कमी का उन्होंने ऐलान किया। साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर बात करें तो उसमें जो टैक्स क्रेडिट था, जो उनकी डिमांड भी थी इस वक्त कंपनीज की और मुख्तलिफ जो स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के भी 20% उसमें टैक्स क्रेडिट था, वो पहले 2 साल के लिए था, उसको फर्दर 1 साल और एक्सटेंड कर दिया और उसमें 10% की और उसमें इजाफा कर दिया, लाइक 10% का और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। जो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर सुपर टैक्स था, जो सुपर टैक्स उसको मजीद 1 साल उसमें इजाफा किया गया है, और ये ज़ाहिर है कि वॉर ऑन टेरर जो इस वक्त हम लड़ रहे हैं, जो ऑपरेशन हमारे यहाँ जारी हैं, उनकी कॉस्ट यहाँ से बेयर की जा रही है। तो मजमूई तौर पर 5.28% की जो इकनॉमिक ग्रोथ है हमारी, उस पर उन्होंने आज जस्टिफाई किया तमाम पॉलिसीज़ को कि आइंदा माली साल के लिए हम इसको 6% हमारा टारगेट होगा। इकॉनमी का साइज डार साहब ने कहा कि $300 अरब तक पहुंच गया। ये फॉर्मल इकॉनमी और इनफॉर्मल इकॉनमी को अगर इसमें ऐड करें तो वो 101 अरब का उसमें भी इजाफा होगा। फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कहा कि जब हम आए थे उसका 8.2% था और उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस किया हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज के बना पे, और आज उसे 4.2% ऑफ GDP फिस्कल डेफिसिट को लेकर आए। टैक्स टू GDP के बारे में उन्होंने कहा कि 13.2%, इस पे बड़ी बात की जा सकती है, इस पे डिबेट की जा सकती है कि ये 13.2% जो हमारा टैक्स टू GDP है, ये सिस्टम में हमें नजर कहां पे आ रहा है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन जो है, इसके ऊपर सवालिया निशान जो है मुख्तलिफ कॉर्नर से यकीनी तौर से रेज होंगे। पॉलिसी रेट उन्होंने कहा कि 5.75% इस वक्त पिछले कई दिहाइयों की कम तरीन इस वक्त पॉलिसी रेट है, शरह सूद है, और ये ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से कम हुई हैं उसी में ये पॉलिसी रेट भी उसी की बिना पे कम हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि इसके दूररस नताइज जो हैं कम अज़ कम हमें नज़र आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक जो है वो भी इस वक्त काफ़ी फल फूल रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोएस्ट लेवल ऑफ डिस्काउंट रेट। कराची से हम इस ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे बजट के मुख्तलिफ नुकात के ऊपर, और आने वाले जो उन्होंने इस वक्त एक क्राइटेरिया और एक गाइडलाइन जो सेट की है, जो डायरेक्शन सेट करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। बात कर रहे हैं माली साल 2017-18 के बजट के हवाले से। अब से कुछ देर कबल फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, सेनेटर इसहाक डार ने बजट पेश किया, और ये उनकी हुकूमत का 5वां बजट था, और पूरी कोशिश की कि इसको अवामी बजट बनाया जाए या कम अज़ कम बयान ज़रूर किया जाए। कहाँ तक इसमें हकीकत है, कहाँ तक फसाना, क्योंकि ज़ाहिर है कि दोनों वर्जन इसमें हमने देखने हैं, इसमें अपने हुकूमत का भी देखना है, इसमें हमने अपोजिशन का भी देखना है, और हमें इंडिपेंडेंट जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं और जो आज़ाद लोग हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनकी राय भी इसमें हमें जानना है। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया इंजीनियर एम जब्बार ने। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब AQ मेमन साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और अदनान मुफ्ती जो है वो भी कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर टैक्स उमूर हैं। तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जब्बार साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये एक बड़ी करिश्मा साज शख्सियत है इसहाक डार साहब, और आदाद शुमार से खेलना इनका बड़ा बहुत जबरदस्त किस्म से वो जो है बजट प्रेजेंट करते हैं। आज से पहले पाकिस्तान की तवील तरीन बजट स्पीच कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करता रहा, ये डार साहब का ही खासा है। जानना चाहूंगा इसमें क्या पाया आपने इस बजट में? देखिए जी, डार साहब की मैं देखता हूँ कि मेमोरी भी अच्छी है, वो फिगर वर्क्स को याद भी रखते हैं। कभी कभी मेरा ख्याल है कि कोई गलती हो जाती है, मगर इस दफ़े मैं देख रहा था कि जो इक्तसादी जायज़ा था कल, मेरा ख्याल है फर्स्ट पोर्शन जो है वो सारा फोकस उसी पे था। अगर आपने भी बातें सुनी, मैंने भी जो बातें सुनी, मेरा ख्याल है कि एक यस्टरडेज जो डेलिब्रेशन थी ऑन इकोनॉमिक सर्वे वो थी। ठीक बीच में जो है वो कुछ हिस्सा आया जहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू रिलीफ्स और कुछ टैक्स मेजर्स की बातें की, और आखिरी हिस्सों में उन्होंने जो है अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पेश किया, जिसको उन्होंने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स की जिन्होंने बात की। मगर एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि ख़ास चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आई है
2015, 16 और 16, 17 और इसके सामने मैं इसको टेबुलेट करने की कोशिश कर रहा था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आ रहा है, सवा उसके कि एक ग्रोथ पैराडाइम जो है 10 से 14% इन डिफरेंट आमिर से रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले और उसके सब हेड्स में करंट एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जो है वो मेरा ख्याल है कि वो ग्रोथ जो है उसका तसलसल हिस्टोरिकल ऐसे ही रहता है, उसका तसलसल बरकरार है। मगर जिस चीज़ की तरफ मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि हिस्टोरिकली ये भी एक हकीकत है कि जब भी एग्रीकल्चर ग्रोथ में वी आर परफॉर्मिंग वेल, उस वक्त मेरा ख्याल है कि एक कह सकते हैं कि एक प्रेस्टिजियस नंबर ऑफ ग्रोथ आ रहा है। अब ठीक है, इस दफ़े हम 5.28 पे आ गए हैं, वहाँ पे 3.46 एग्रीकल्चर हमारा आया है, तो डिस्प्यूट भी हो रहा है फिगर नंबर्स के ऊपर। मगर लेट अस बी वेरी क्विक टू से कि व्हाट इज़ द बेस्ट आई वुड सी। मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा शायद प्राइम मिनिस्टर के कोई हिदायत थी, या मेरा ख्याल है कि ये डोनर्स भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल वन कैन से इट्स हाईली डिप्रेसिंग। यानी जिस मुल्क में जो है वो 6 करोड़ लोग जो हैं, 29.5% को अगर हम लें तो 6 करोड़ से ज़्यादा ही बनते हैं। उस 6 करोड़ लोगों में और अगर 90 मिलियन हम डेमोग्राफिकली क्लेम करते हैं कि हमारे पास लोग हैं जो इस तरक्की की एक हिस्सेदारी में कोई रोल निभा सकते हैं, उसमें 3 करोड़ लोग जो हैं वो कभी स्कूलों में नहीं गए। आज 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। आज 1.25 करोड़ लोग हेल्थ के सर्विसेज के तलाश में घूम रहे हैं। आज 30 लाख लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड आमिर से, दे आर जस्ट बेगिंग ऑन द स्ट्रीट्स। तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों को, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की एक अक्यूमुलेशन में देख रहा हूँ कि सेग्रीगेटेड नंबर्स में काफ़ी हद तक नज़र आती है। लेट अस कॉल इट अ गुड अप्रोच कि कम से कम एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से गवर्नमेंट ने की। और दूसरी बात जो गवर्नमेंट की मैं समझ रहा हूँ इसमें मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी एक फोकस करने की ज़रूरत को मेरा ख्याल है कि महसूस किया गया है। कहाँ पे रिलीफ एंड टैक्सेशन जरूरत महसूस जरूर की गई, लेकिन आज इस्लामाबाद में आप देखिए ना कि आज किसानों ने एहतजाज किया और उस एहतजाज के ऊपर उन्होंने टीयर गैस शेल तक हुए, यहाँ पे किसान जख्मी भी हुए। तो ये भी थोड़ी सी एक ज्यादती की बात है। देखिए वो तो मेरा ख्याल है कि अब आई विल नॉट गो इनटू द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड सिविल एस्टेब्लिशमेंट के आया वो पस पर्दा उसी पॉलिसी को विज़ा विद इंडिया एक ही पेज पे हैं या डिफरेंट पेज पे हैं, ये कंट्रोवर्सी आई डोंट वांट टू एंगेज। मगर मेरा उस वजह से जरा इस वक्त AQ मेमन साहब जो हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा। मेमन साहब, इस वक्त आदाद शुमार जो उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, जाहिर है कि ये हुकूमत का अपना इस टेनियर का, इनके 5 साल दौर का आखिरी बजट होगा और उसमें भरपूर कोशिश की अवामी बजट बनाने की, और साथ ही साथ एक मैनिफेस्टो जो 2018 के बाद का जो 25 का उन्होंने दिया वो भी सामने नजर आया। क्या कहेंगे, क्या चीज देखी आज डार साहब की तकरीर में, क्या कुछ नया था? आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो पिछले 4 बजट्स हैं उनसे मुझे कुछ ज़्यादा कोई इतना मुख्तलिफ नहीं लगा, लेकिन एक कोशिश एक ज़रूर की गई है कि जहाँ पर भी कोई चीज़ में फ़र्क था, मिसाल के तौर पे जैसे इस्लामिक बैंकिंग में और अगर कन्वेंशनल बैंकिंग में फ़र्क था तो उसको ठीक किया गया। इसी तरह कुछ सैलरी क्लास को जिस ज़रूरियात की जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको किया गया। जो आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनको रैशनलाइज किया गया कि बजाय ये कि कोई 2-3 स्लैब में हो उसको एक स्लैब में किया गया। लेकिन एक बात क्या अब्दुल कादिर साहब आप जो हैं वो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर भी रहे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के ऊपर भी रहे, तो इन दोनों के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ज़रा स्पेसिफिक होते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कुछ इंसेंटिव्स उन्होंने दिए और क्या क्या दिया, आप क्या देख रहे हैं? और कॉर्पोरेट के हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, उनके प्रपोजल को मद्देनज़र रखा जाए तो उसमें यह है कि न्यू लिस्टिंग पे जो मराद मांगी थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने वो उनको मिली है। कैपिटल गेन पे चूँकि मैं समझता हूँ कि ACCP का अपना व्यू था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना व्यू था। ACCP का ये व्यू था कि कोई एक रेट होना चाहिए बजाय ये कि
کوئی سرٹن پیریڈ ہونا چاہیے تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں عدنان مفتی سے بھی میں لے لوں کیونکہ بالکل اس وقت کی کمی ہے یہاں پہ اسپیچ ذرا لمبی ہو گئی تھی. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ آج کی تقریر کے حوالے سے؟ جی میرا خیال بھی بالکل یہی ہے باقی پینلز کی طریقے سے کہ کوئی اس میں نئی بات نہیں تھی اور جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. یہ 5واں سال ہے اور گورنمنٹ کا اور ان کو یہ اعزاز بھی انہوں نے کلیم کیا کہ یہ 5واں سال ہے. ریفارمز کی باتیں کی گئیں, بہت ساری باتیں کی گئیں, بٹ اگر آپ اس کو نٹ شل میں دیکھیں خاص طور پہ تو یہ جو ٹیکس میجرز کے حوالے سے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت کانٹرڈکٹری بات کی گئی ہے. خاص طور پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات پر کہ ایک طرف تو یہ کہا ڈار صاحب نے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ گئی ہے, 13.2% ہو گئی ہے اور 5 لاکھ لوگ بقول ان کے جو ہیں وہ رجسٹریشن میں آ گئے ہیں بیکاز آف دی میجرز یہ نان فائلرز کے اوپر ہم نے بار بار لیے گا اس کی وجہ سے. آن دی ادر ہینڈ وہ جو مفتی صاحب میں اس میں تھوڑا سا یہاں پہ مجھے ٹرانسمیشن کی طرف سے اس وقت جو ہے ریپ اپ کرنا ہے, لیکن ہمارا ڈسکشن جو ہے ہم رات 11:30 بجے دوبارہ بیٹھیں گے اور 11:30 بجے ہم تمام چیزوں کو ہم کنٹینیو کریں گے. آج کی کے حوالے سے ناظرین اس وقت ایک بار پھر چلیں گے ہم اپنے ریگولر ٹرانسمیشن کی طرف.